Okay. So last time we talked. We started chapter number 3, which was critically reviewing the literature. We discussed how to conduct preliminary research of existing material and why is it necessary. Then we talked about organizing. We discussed that it is necessary to organize valuable ideas and findings. Literature review is important to identify other research that might be in progress. So you might not know how many other researches are going on. So that's why it's important to conduct research and then conduct literature search first, and then generate research ideas, develop critical perspectives. We also discussed the review process for critical literature search, literature review process, and we discuss research. Once you have got the research questions, once you've got the research question, you would define parameters, generate and define research terms, conduct search, then you would obtain literature, evaluate it, record it again. You would do another cycle, and I gave you example last time. We discussed how, like, we discussed example of uh, job training and how there could be different variants, different research would help you different type of studies using different terms, right? And it would help you to enhance your literature review, right? For example, job insecurity, job security. I mean, you might find some studies using term job security. Others might have used it in a different way, like job insecurity, right? Some studies, they use similar construct, job uncertainty, right? So it's only when you start searching the literature, the alternative terms are available. Once there are alternative terms available, you redefine parameters, redefine search terms, conduct another search, obtain literature, evaluate it, record it, and then it goes on now, on and on. And we discussed that this figure shows that literature search is a constant process in the literature review process, or even during whole of your research project, right? We discussed two approaches, deductive and inductive. Deductive starts with theory and then moves on to hypothesis building, testing through data, while the inductive approach is basically it explores the data pattern. You remember we discussed example of emerging COVID-19 situation, right? There are different data patterns being observed by the theorist, and then those data patterns, they lead to develop theories, and then finally we test those theories using other literature, right? So we also discuss key purposes of critical review, which is refining research, discover recommendations for future research, finding gaps for future studies, avoiding avoiding any repetition of work already being undertaken, right? And to provide insight into strategies and techniques, methods, right? Tools being used for the research which are suitable for your research objectives, right?
Today we are going to start skills for effective reading. Right now, effective reading. Effective reading, obviously, when you are going through any piece of literature, it involves extensive reading. Because if you remember, we are not, I mean, we discussed in the last lecture, we are not simply going to copy and paste literature. We have to review it, understand it, evaluate it, and then we need to, make a story out of literature, right? In order to do that, it's very important that you have effective reading skills for literature review, right? So कोई भी आप अगर एक आर्टिकल पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले, obviously, it's not possible for you to read like 100 articles, 50 articles a day. Obviously, it's not possible. और ये ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए कि वो सारे के सारे आपसे रेलेवेंट नहीं हो। तो पहला स्टेप, कोई भी आप चीज़ पढ़ें, एक पहली रीडिंग्स के लिए है, you need to preview it, right? Previewing help you to understand, to get an idea whether this research article, whether this journal article or a book, whether it is related to your topic or not, whether it closely fit your research area or not. Obviously, sometimes it's one way or the other they are related, but you need to see whether they are really close to your research objectives or not, right? So previewing is very important. People start reading, and then by the like by the time they've read quite a lot, they realize it's not that relevant. प्रीव्यू करने का तरीका क्या है कि ऑब्वियसली एक तो आप हर रिसर्च आर्टिकल जो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको फेयर आइडिया हो जाता है कि आपका आर्टिकल जो है ये आपसे रिलेटेड है। दूसरा तरीका ये है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद भी अगर कोई चीज़ें आपको समझ ना आए तो आप हर पैराग्राफ के शुरू में लाइक इंट्रोडक्शन पढ़ें, आपको उससे अंदाजा देगा और सीधा फाइंडिंग्स पे चले जाएं, फाइंडिंग्स और डिस्कशन में। अगर आपको उसमें से कोई चीज़ नज़र आती है, देन यू कैन फर्दर go into detail. So previewing is not thoroughly reading. It is just taking a preview of the articles in order to identify, in order to determine the relevance with your research objective. So it's very important. इसके अलावा अगर आप अपनी डेली स्टडी में भी आप देखते हैं ना, इसे प्रीव्यूइंग का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आप कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जनाब वो कोई चीज़ किताब पढ़ी है, समझ ही नहीं आई। समझ इसलिए नहीं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो पहले आप ये चीज़ समझें कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली समटाइम्स because we are not native English speaker, right? At times you also have problem in understanding some of the words, right? जब आप पढ़ते हैं तो आप our focus is basically more on very small part, the line we are reading. उस line के different meaning, this is how mind works. आप उस line के different जो words हैं उन्हें connect कर रहे होते हैं, और sometimes इस तरह आप जब lines को पढ़ रहे हैं या उन words पे focus कर रहे हैं, you miss the bigger, the whole idea of the paragraph, right? You miss the whole idea of the article. इसलिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी आर्टिकल, कोई बुक, चैप्टर पढ़ने लगें, उसको प्रीव्यू करें, उसकी समरी सबसे पहले ऊपर पढ़ें, और आपके जहन में एक रफ स्केच होना चाहिए कि व्हाट दिस इज़ अबाउट, राइट? और उसके अलावा जब आप प्रीव्यू करने का तरीका ये है कि हर पैराग्राफ की पहली लाइन
और आखिरी लाइन, पहली लाइन और आखिरी, यानी ये पहली 2 लाइंस और आखिरी 2 लाइंस आप पढ़ें बड़ा क्विकली, और सारे पर अब और रफ एक जो स्केच बनाने की कोशिश करें कि ये इस ये आर्टिकल ये किस चीज़ के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, उसके क्विकली जो है ना एक एक 2-2 लाइंस हर पैराग्राफ के शुरू और आखिर में पढ़ लें। You get a fair idea, some idea at least what this article is all about. जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे, आप कभी अपनी जो डेली रीडिंग में भी ये करके देखिएगा कि आप जब वो उसके बाद ये पहले या 2 से 3 मिनट अगर आप ये प्रीव्यू कर लें, उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीव्यूइंग। नॉर्मली हम इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रीव्यूइंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर इफेक्टिव रीडिंग। सेकंड इज एनोटेटिंग। I mean, I often asked how many people use highlighters. Not many people use highlighters in reading, right? एक तो ये कि हाइलाइटर्स अगर आपने यूज करना है तो कम से कम मेरा ये व्यू है कि कम से कम 2 कलर के आपके पास हाइलाइटर्स होने चाहिए। एक वो चीज़ें जो यू बिलीव आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे हाईलाइट करें, फॉर एग्जांपल येलो कलर से, लेकिन वो हमेशा कलरिंग स्कीम एक ही रहे आपकी। अगर आपने कहा है कि इम्पोर्टेंट के लिए येलो है तो आपकी सारी बुक्स में और सारे डिफरेंट ईयर्स में वो येलो ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कहा कि ग्रीन वो है जो मुझे समझ नहीं आई और मैंने डिस्कस फर्दर करना है तो उसे ग्रीन, वो सारी बुक्स में वही। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब मैंने आज देखना है कि मेरी रिसर्च से रेलेवेंट कौन कौन सा बनता है, ठीक है, या मैं रिसर्च आइडिया के तौर पे कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं तीसरा कलर यूज़ करूँगा, पिंक कलर फॉर एग्जांपल, तो वो पिंक ही रहना चाहिए। तो ये थ्रू आउट दिस कलरिंग स्कीम दैट शुड स्टे द सेम। दूसरी चीज़ ये एनोटेशन का मतलब ये है कि सिर्फ हाईलाइटिंग, अच्छा ये हाईलाइटिंग जो है ना ये आप ऑनलाइन बुक्स पे भी कर सकते हैं। आई मीन पीडीएफ कॉपीज जो हैं वो आप उस पर भी कर सकते हैं हाईलाइटिंग, राइट। हाईलाइटर की ऑप्शन होती है, और ये ज़रूर करें। उसकी वजह जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ने बैठते हैं तो कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है आपने ये कभी देखा ही नहीं, हाईलाइट किए हों, आपने कमेंट्स लिखे हों तो आपको याद आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये एनोटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हाईलाइटिंग से एक स्टेप आगे जाना। जब भी आप पढ़ने बैठे यू नीड टू हैव अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड। अगर आप पढ़ रहे हैं डिजिटल उसकी वर्जन पढ़ रहे हैं, पीडीएफ कॉपी पढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी अगर आप देखें ज़्यादातर जो पीडीएफ रीडर्स हैं उसमें लिखने कमेंट्स लिखने की भी ऑप्शन होती है। तो जैसे ही आपको एक लाइन पढ़ते हुए, एक पैराग्राफ पढ़ते हुए आपको लगा कि यार दिस पैराग्राफ कुड बी यूज्ड इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ माय रिसर्च, उधर साइड में उधर आप वो उस पर कमेंट्स नोट कर लें, या आप कहें कि जनाब ये पोटेंशियली ये गैप हो सकता है मेरी स्टडी का, जहाँ आपको नजर आया उसे हाईलाइट करें, साथ में लिख भी लें। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि आप कई दफ़ा पढ़ते हैं उस वक्त आपको आइडिया आता है कि यार ये बड़ा रेलेवेंट है फलां चीज़ के लिए। जब 2-3 दिन बाद आप दोबारा उसी को लेके बैठते हैं तो आप भूल गए होते हैं। ठीक है, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नोट इट डाउन, राइट। सो एनोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाईलाइट करें, उसे नोट डाउन करें, उस पर साइडों पे क्वेश्चन, कई कोई चीज़ नहीं समझ आती, पेंसिल से क्वेश्चन मार्क साइड पे लगा लें ताकि आपने डिस्कस करना है या आप समझते हैं कोई बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप कोई स्टार का सिंबल बना लें कि यार इस जगह से मैंने कुछ कमेंट्स लिखने हैं, कमेंट्स लिख लें। पीडीएफ फाइल्स अगर आप यूज़ करते हैं, पीडीएफ रीडर, उसमें कमेंट्स की ऑप्शन होती है। मैं वैसे यूज़ करता हूँ फॉक्सिट, FOXIT, फॉक्सिट फ्री पीडीएफ रीडर है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पीडीएफ प्रो में आपको पेड वर्जन में मिलते हैं, इसमें फ्री मिल जाते हैं। अगर आप ये यूज़ करना जिसमें हाईलाइटिंग, एनोटेशन, ये सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स फ्री, राइट।
it's good for annotating digital books. Then comes summarizing. We preview, annotate, and summarize, because what this article is all about. Uh, what what are the important things in this article, right? That is summarizing. And most importantly, the fourth part is comparing and contrasting. Now here is where you are going to apply your critical skills. आप कह रहे हैं कि जनाब इस आर्टिकल में इस ऑथर ने फलां फलां कहा है, वो जो आर्टिकल नंबर 2 था फलां ऑथर का और आर्टिकल नंबर 3 था उसने भी ये फाइंडिंग्स दी थी, लेकिन आर्टिकल नंबर 4 वाले के निस्बत इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, उसका सैंपल साइज डिफरेंट था, उसकी स्टडी में वेरिएबल्स डिफरेंट थे, व्हाटएवर रीजंस, ठीक है। अब ये आप रीजंस देंगे, आप कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे आपकी एग्जिस्टिंग स्टडीज से और दूसरी स्टडीज में जो भी कंपैरिजन है, या आप 2 या 3 डिफरेंट स्टडीज देखते हैं, उसमें कंपैरिजन देखते हैं कि किन स्टडीज का क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, और उस पर आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। मैं बार बार ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इवन लिटरेचर रिव्यू which seems simply a review of different books or articles, it should be like an interesting story, right? So as I said, the capacity to evaluate what you read, it's not simply reading, copying and pasting. Capacity to evaluate, आपने जो पढ़ना है उसको evaluate आपने करना है कि जो आप कह रहे हैं कि ठीक है कहें, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस आर्टिकल, मैं मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। अभी बहुत सारे जब कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, बेशुमार लिटरेचर आइटम्स ऐसी आई हैं जो कि अनऑथेंटिक थी, ठीक है। एवेल्युएशन इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि आप, मिसाल के तौर पर एक स्टडी आई, उन्होंने कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो एक मेडिसिन जो उसके लिए यूज़ हो रही थी, उन्होंने कहा हमने ये स्टडी की है और ये एक्चुअली नुकसानदेह है, ठीक है, इससे कोई बंदा ठीक नहीं होता। अब कुछ अरसे बाद पता चला कि जी उसका सैंपल साइज सफिशिएंट नहीं था, उसमें और बहुत सारे मसले थे, इसलिए वो स्टडी ठीक नहीं। तो आप सिंपल अगर रिपोर्टिंग कर देंगे, आपने सिर्फ ये देखना है कि स्टडी कंडक्ट हुई है और आपने उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन्स, राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी स्टडी करें, जो भी रीड करें, उसको आप एवेल्युएट करें, ठीक है। और यू शुड हैव कैपेसिटी टू रिलेट व्हाट यू रीड टू अदर इंफॉर्मेशन। सिंथेसिस, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको रिलेट कर सके अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट ये है, या मेरी इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट ये है, या मेरी स्टडी का कॉन्टेक्स्ट ये है, या आप ये कह सके कि जनाब ये जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं इनका दूसरे लिटरेचर से जो बुक्स लिखी गई हैं पाकिस्तान के बारे में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान की ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान का तस्करा करे, उससे कैसे रिलेट करते हैं। तो आपने अगर आपकी स्टडी में एवेल्युएशन नहीं है, आप सिंपली रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलान ये क्या, फलान ये क्या, फलान ये क्या, और आपका लिटरेचर रिव्यू, इट वुड नॉट बी अ गुड लिटरेचर रिव्यू, राइट। लिटरेचर रिव्यू में आपने देखना है कि दूसरे लोगों ने क्या कहा और क्या चीज़ें उनकी स्टडीज़ में मिसिंग थी, किस एंगल पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें बहुत अच्छी थी, स्टडीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं है, उनमें क्या गैप्स हैं। आप फिर उससे अपने लिंक करेंगे अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ, हाउ यू आर गोइंग टू फिल दोस गैप्स, राइट। So it will make very interesting literature review if you are going to evaluate it and relate it to the other information, right? So you need to ask yourself, why am I reading this? What is my objective? Why am I reading it? What is the author trying to do in his writing?
अब ये क्या मतलब, इसका मतलब ये अब होता ही है कि कई दफ़ा एक ऑथर ने एक आर्टिकल के शुरू में लिखा होता है कि जनाब लिटरेचर रिव्यू किया होता है, और उसने लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जॉब सिक्योरिटी जो है वो इट लीड्स टू एम्प्लॉय कमिटमेंट। ये मैंने एग्जांपल पिछली दफ़ा भी आपसे डिस्कस की थी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है जॉब सिक्योरिटी, ये लिटरेचर कहता है, और नीचे उसने जाके फाइंडिंग्स में उसने जो स्टडी किए थे उसमें लिखा होता है कि मैंने ये पढ़ा है और ये प्रूव नहीं हुआ मेरे डेटा से कि जॉब सिक्योरिटी से कमिटमेंट बढ़ती है और परफॉर्मेंस बढ़ती है। लेकिन क्योंकि हम ऊपर से एक लाइन पढ़ते हैं कई दफ़ा लिटरेचर की, और उसी को उठा के हम कह देते हैं उस ऑथर ने ये कहा, हालांकि उसने ऑथर ने ये कहा ही नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू डू इन दिस राइटिंग। ठीक है, तो आपने ना सिर्फ ये देखना है कि ऑथर वहां पे लिखा क्या हुआ है, आपने देखना है ऑथर कहना क्या चाह रहा है, उसकी ओवरऑल क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उस आर्टिकल, और जो करना चाह रहा है हाउ कन्विंसिंग इज दैट, is it really convincing, looking at the methodology, looking at the research sample tools, techniques, analysis, whether it is robust enough, क्या जो what make of this reading, how, and this is how you are going to relate it with your own research, right? So अब क्या होना चाहिए आपके लिटरेचर रिव्यू में, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू में? इंक्लूड की एकेडमिक थेरीज, की एकेडमिक थेरीज। आप अक्सर जब रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, कभी वाइवा उसका कंडक्ट जब किया जाता है, तो अक्सर वो एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से कि भाई आपने कौन सी थेरी यूज़ की। अब आप देखें अक्सर आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई की एकेडमिक थेरी उसमें यूज़ की गई रिसर्च में, राइट? क्योंकि हमने अक्सर ही कहते हैं जब deductive research, deductive approach is the approach where we start with theories, we build hypotheses, and then we test it, right? So key academic theories need to be included in the critical review, right? Then we also need to demonstrate current knowledge of the area. Use clear referencing for the reader to find out original cited publications. अगर आपने साइटेशन नहीं की, रेफरेंसेस नहीं दिए, इसका मतलब यह है कि आपकी लिटरेचर रिव्यू में बहुत बड़ी कमी रह गई। आपके लिटरेचर रिव्यू में बहुत बड़ी कमी रह गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप लिटरेचर में साइटेशन देते हैं, अच्छा कई लोग ना सिर्फ एंड में वो दे देते हैं बिब्लियोग्राफी, राइट? जब बिब्लियोग्राफी देने से आपको ये तो पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पता नहीं चलता कि कौन सा आर्ग्यूमेंट आपने किस ऑथर से, यानी आपने इस पैराग्राफ में जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं वो कहाँ से लिए, तो उसके लिए हमें साइटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, साइटेशन कहते हैं कि जो इन टेक्स्ट आप जब लिखते हुए इन टेक्स्ट आप ऑथर का नाम देते हैं, सिर्फ ऑथर सरनेम एंड द ईयर, राइट? उसको हम कहते हैं साइटेशन। और फिर उसकी कंप्लीट उस साइटेशन का कंप्लीट रेफरेंस हम एंड में जाकर देते हैं, जिसे हम रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी कहते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज रिसर्च ऑफ अदर्स। आप अगर दूसरे का आइडिया अपना आइडिया क्या क्या प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं दिस इज प्लेजरिज्म, राइट? सो दिस इज प्लेजरिज्म। अगर आपने कंटेंट ऐसे आपके कि क्रिटिकल आपने कंटेंट्स में अप्रोप्रिएट रेफरेंसिंग यूज नहीं की, तो और इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा काम,
अगर आप कह रहे हैं मेरा काम है और फिर आपकी हाई सिमिलैरिटी आती है तो उस पर आपको पोटेंशियली लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज अ प्लेजराइज्ड वर्क, राइट। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप किसी का काम, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट लफ्ज लिखें, आप अगर उसका आइडिया भी लेते हैं अपने लफ्जों में लिखते हैं तो आपको साइटेशन करनी चाहिए, राइट। So we, in a minute, we'll see these checklists, box 3.2 and 3.3. So how you are going to write the literature chapter. Three common structures. एक तो ये कि आप जब एक सिंगल चैप्टर के तौर पे लिखे लिटरेचर रिव्यू, दूसरा ये है कि सीरीज ऑफ चैप्टर्स, तीसरा थ्रू आउट द रिपोर्ट। देखिए डिफरेंट फॉर्मेट्स। अगर आप एक थीसिस लिख रहे हैं या एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कई दफा होता है कि एक चैप्टर ले लेते हैं आप, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा चैप्टर आप लिटरेचर रिव्यू का ले लेते हैं। इसको कहते हैं, यानी ये पहला फॉर्मेट है। और जनरली हमारे स्टूडेंट्स यही करते हैं जनरली। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि लिटरेचर रिव्यू बड़ा एक्सटेंसिव होता है। मिसाल के तौर पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं जॉब कमिटमेंट के एंटीसीडेंट्स कौन से हैं, यानी किन चीज़ों से जॉब कमिटमेंट पैदा होती है, उसकी रीजंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जब जॉब कमिटमेंट हो जाए तो उससे क्या पॉजिटिव आउटकम्स निकलती हैं, ठीक है। और आप ये भी स्टडी करना और आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि इस पर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप को चेंज कर देती हैं। आप हो सकता है लिटरेचर इतना ज़्यादा हो कि आपके पहले चैप्टर में मैंने सिर्फ देखने हैं एंटीसीडेंट्स और रीजंस, दूसरे चैप्टर में मैं देखूंगा outcome. So there could be second possibility is a series of chapters, right? तीसरा ये होता है कि आप चैप्टर्स अलग से नहीं बनाते। थ्रू आउट द रिपोर्ट यू साइट लिटरेचर, आप अपने हाइपोथेसिस पे या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं और सारी रिपोर्ट में साथ साथ आप लिटरेचर रिव्यू करते जाते हैं। ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तीनों एक्सेप्टेबल हैं। जनरली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले फॉर्मेट की तरफ जाते हैं, सिंगल चैप्टर के लिए, ठीक है। सो then demonstrate that what you have read, understood, and evaluate is understood and evaluated. But at the same time, it's very important. You need to link ideas to form a cohesive and coherent argument. Very important. Cohesive and coherent argument. मैं अभी आपसे ये बात कर रहा था कि अगर जब आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसका नुकसान क्या होता है कि आप उस कॉपी पेस्ट में सिंपली जहाँ से आपको कोई नजर आए कोई चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कई दफा इट डज नॉट मेक द फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मैं बार बार लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, इट शुड बी लाइक अ स्टोरी। स्टोरी में अगर कोई चीज़ एकदम से चेंज हो जाए ना, जैसे हम वो कहते थे कि इंडियन मूवीज़ में वो जनाब वो कोई प्यार भरा सीन होता है और वो यानी कि बाजार में बात कर रहे होते हैं और साथ ही जो गाना चल जाता है वो किसी पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, तो हैं वो उधर बारिश शुरू हो जाती है, उधर अब ये डिस्कनेक्ट होता है। स्टोरी में डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एक ऐसी मूवी की तरह होना चाहिए जिसमें एक पार्ट दूसरे के से लिंक्ड हो। कोहेसिव, कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट जब बिल्ड करें, अगर आपने थोड़ा चेंज भी करना है, देखें हमेशा आपका एक पैराग्राफ की आखिरी लाइन जो है वो दैट शुड मेक अ केस और ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ। आप कोई नॉवल देख लें पढ़ के, अच्छा जो अच्छा ऑथर है ना, वो आखिरी जो लाइन होती है ना उसकी या उस सेक्शन की, उसमें अगले सेक्शन के लिए जो है ना वो एक यानी ओपनिंग छोड़ जाता है कि वो कहता है ये हो गया, ये हो गया, अब
देखते हैं आगे क्या होना, और आगे जो होना वो फिर अगले सेक्शन में शुरू कर देते हैं। ये ऐसे ही है कि जब अब ड्रामा खत्म होता है ना, तो आखिरी 1 मिनट में वो कोई ऐसी चीज छोड़ जाते हैं, सस्पेंस वाली सिचुएशन, और अगली दफा उधर से शुरू करते हैं ताकि पता चले कि लिंक्ड। तो यही काम आपने लिटरेचर रिव्यू में करना है। ये नहीं कि एक पैराग्राफ एक चीज पे, दूसरा पैराग्राफ दूसरी चीज पे। मिसाल के तौर पे आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, लेट्स से ट्रेनिंग पे। आपने कहा कि सबसे पहले आपने शुरू किया ट्रेनिंग की डेफिनेशंस, ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख दी। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज दिस, आगे दूसरा लिटरेचर शुरू। अब आप जब लिखते हैं कि ये डेफिनेशन है, फ्ला ऑथर ने ये कहा है, फ्ला ने ये कहा है, तो 2-3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन वन of training that includes both qualitative and quantitative aspects, right? जॉब ट्रेनिंग जो है वो उसमें जॉब इफेक्टिवनेस की भी हम बात करते हैं, और जॉब ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जो पहली पुरानी डेफिनेशन में लिखा था कि टाइपिंग सीख ली तो जॉब ट्रेनिंग, ये बिहेवियर। इसलिए जो मेरा आने वाला लिटरेचर है उसमें मैं बिहेवियर की भी बात करूँ। अब देखिए आप ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन में आप लिंक कर, यानी आपने आगे जाके नीचे कहीं लिखना था कि जनाब ट्रेनिंग जो है वो बिहेवियरल ट्रेनिंग करवाई है, लोगों को मोटिवेशन ट्रेनिंग करवाई है, तो वो कई दफ़ा बड़ा डिस्कनेक्ट। आप एक डेफिनेशन लिखें कि डेफिनेशन ये हो कि जनाब ट्रेनिंग जो है वो किसी भी चीज़ को सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रेनिंग है, नीचे आप लिखें कि जो है ना लोगों को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो देयर सीम्स डिस्कनेक्ट। आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ स्टोरी बनानी है और उसको कोहेरेंट और कोहेसिव आर्ग्यूमेंट में, कि ये क्योंकि मॉडर्न डे ट्रेनिंग जो है उसमें बिहेवियरल ट्रेनिंग शामिल है, उसमें हम ये देखते हैं कि लोगों को सर्टेन एटीट्यूड कैसे डेवलप करने हैं, इसलिए जो बिहेवियरल ट्रेनिंग है उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन बिहेवियरल ट्रेनिंग में इश्यूज होते हैं, वो ये होते हैं कि कई दफ़ा बिहेवियर चेंज करना बड़ा मुश्किल है, फिर आप उसमें बिहेवियर का लिटरेचर दे सकते हैं। अब जो भी देंगे आपने ये ध्यान रखना है कि things are interlinked and there are coherent arguments, right? Make clear connection to your research, right? Make clear connections to your research objectives and subsequent empirical material. ये मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ना सिर्फ लिटरेचर रिव्यू इटसेल्फ कोहेरेंट होना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि जो आपने ऑब्जेक्टिव ऊपर लिखे हैं क्या उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं। अक्सर देखने में आता है कि ऑब्जेक्टिव्स में बात और हुई होती है, नीचे लिटरेचर रिव्यू में बिल्कुल ही आपने डिफरेंट स्टोरी लिखी है, जो जिधर से जो मिला वो उधर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखें कि हर स्टेज पे कि डज दिस लिटरेचर रिव्यू answer my research questions, is it linked, is it some one way or the other that is you know that is linked with your research objectives or not, right? So we've got literature sources, published and unpublished primary sources. We'll go through in a minute. Yeah. So if you look at this, primary sources include report, theses, emails, conference proceedings, company reports, unpublished manuscripts. Secondary sources like journal, books, newspapers, some government publications, and then tertiary resources include abstracts, catalog. अब ये जो ना बड़े कम यूज होते हैं tertiary। अब जो ना क्योंकि इंटरनेट किसी ज़माने में इंटरनेट नहीं था, वो इंडेक्सेस आती थी, उसमें देखते थे कि जी फलान रिसर्च पब्लिश हुई है कि नहीं। अब ये सारी चीज़ें आप क्योंकि ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, तो नॉर्मली वी स्टिक विद दिस प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्सेज, राइट?
So we need to write down parameters of our research, keywords, terms to be used, databases and search engines to be used, criteria for selection of relevant and useful studies, and discuss these with your research supervisor. ये जो लिटरेचर सोर्सेज है ना, ये बहुत इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता. सर्च कैसे करना है, ये जो इन्होंने लिखा हुआ सर्चिंग यूजिंग टर्शरी रिसोर्सेज, लिटरेचर सर्च पे मैं आपको एक अलग से एक लेक्चर दूंगा मैं, या रिकॉर्डिंग उसकी दूंगा. ये मैंने आपसे पहली बार किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमारे अक्सर स्टूडेंट्स जो एकदम मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने कहा जी वो हम एक ना चीज़ सर्च करने की कोशिश करें लेकिन इंटरनेट पे पूरे पे कहीं नहीं. तो मैंने जब सर्च की तो मुझे कोई 1000 के करीब सर्च रिजल्ट आ गए एग्जैक्टली उस चीज़ पे जो वो सर्च करना चाह रहे थे. अब ये सिंपली कई दफ़ा हम प्रॉपर सर्च करना ही नहीं हमें आती. Google itself is very powerful, right? But we do not know how to conduct effective search. So I'll record another lecture. I'll tell you how to conduct Google search, right? Google and other sources, of course, right? क्योंकि मसला ये है कि Google यानी हमारे पास कई सर्च में इतना डेटा आ जाता है, या तो मिलता ही नहीं है, इतना डेटा आ जाता है कि हमें समझ नहीं आती इतनी ज़्यादा स्टडीज में से हम कैसे देखें. हम वही देखते हैं ऊपर 2-3 जो सर्च रिजल्ट होते हैं उन्हीं में से कुछ देख लेते हैं, which again it's not the appropriate way, right? So conducting search on the internet, I'll share a lecture with you. But most importantly, we need to define the scope of our review, assess relevance and values. ये मैं बार बार ये पॉइंट स्ट्रेस कर रहा हूँ. रेलेवेंस विद योर ऑब्जेक्टिव्स, रेलेवेंस आपकी ओवरऑल स्टडी और फाइंडिंग्स के साथ लिटरेचर की है या नहीं. एंड थर्ड इज असेस सफिशिएंसी. इज द लिटरेचर यू आर रिव्यूइंग, इज इट सफिशिएंट, इज इट गुड एनफ, ठीक है, या आप बहुत थोड़ा सा और वो की इश्यूज वो कवर ही नहीं करता, राइट? So okay, the last thing we're going to discuss is what is plagiarism. बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, वो कहते हैं जी मैंने प्लेजरिज्म चेक करना है, मेरा प्लेजरिज्म 15% आया है, आपकी अपनी रिपोर्ट्स में देखते हैं. वो प्लेजरिज्म नहीं है, उसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप समझें इस चीज. सिमिलैरिटी इंडेक्स, टर्निटिन कभी भी ये टर्म नहीं यूज करता कि आपका प्लेजरिज्म 25% है. वो कहते हैं सिमिलैरिटी इज 25%. और जनरली HEC का क्राइटेरिया पाकिस्तान में कि अगर आपका इफ इट इज अप टू 19% सिमिलैरिटी एंड नो there should not be similarity more than 4% similarity from a single source, then it is acceptable. लेकिन आप conceptually अगर इसकी definition देखें तो basically plagiarism का मतलब है चोरी करना. वो आपने 2 सारी रिपोर्ट में जानबूझ के ऑथर का रेफरेंस नहीं दिया, सोर्स नहीं बताया,
ठीक है, हाइड किया है, इसको प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग मटेरियल फ्रॉम अनदर सोर्स। यू स्टील मटेरियल, डू नॉट डिस्क्लोज। आपके हाथ में डॉक्यूमेंट ला के आप अपना करके प्रेजेंटिंग एनीबॉडी एल्सेस वर्क, इसलिए 5% पे भी प्लेजरिज्म हो सकता है, चोरी 5% की भी हो सकती है। और जरूरी नहीं कि अगर 30%, 30% सिमिलैरिटी आपकी तो जरूर प्लेजरिज्म। कई दफा आपको लिखना अच्छा नहीं आता, वो आप ऑथर के नाम मिस कर गए हैं या प्रॉपरली नहीं दिया, आपको साइटेशन का प्रॉपर नहीं पता था, ठीक है, तो उसको हम चोरी नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट प्लेजरिज्म, राइट। दैट कुड बी पुअर, और नीयत हमें एक्सप्रेस होती है कि वो किस तरह। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने एनालिसिस पार्ट है, किसी पार्ट उठा के अपनी रिपोर्ट में एनालिसिस पार्ट दिया, एनालिसिस में तो सारे की फर्क होती है, और उसे कहा कि मेरा एनालिसिस, अब अगर वो 3% या 4% भी होगा तो वो प्लेजरिज्म ही कंसिडर होगा, क्योंकि चोरी की गई है किसी और का मटेरियल, आप अपने मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ गई बात की आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लोग समझते हो, कहते हैं इतने परसेंट से मेरा काम है इसलिए ठीक है, नहीं। जहां पे आपने यू willfully, intentionally you steal others material, present somebody else's work and own work, that is plagiarism, right? Submitted material, other authors copying material without quotation marks. quotation marks आप कहाँ पे यूज करते हैं? कोटेशन मार्क्स आप वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे आप जहाँ पे आप ये कहते हैं कि आपने एग्जैक्ट टेक्स्ट लिया है, किसी एग्जैक्ट टेक्स्ट किसी जगह से। मिसाल के तौर पे डेफिनेशन है, आपको पता है अगर मैं अपने लफ्ज़ों में ये डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं डेफिनेशन सारी खराब कर दूँ, ठीक है, या उसके बड़े स्पेसिफिक। इस केस में आप क्या करते हैं, उसे कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और उसमें, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि जब आप कोटेशन मार्क्स में लिखें, इसमें साथ आप पेज नंबर भी उधर ही देते हैं, साइटेशन में पेज नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप, इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा अलहदा से। आपके लिए मैं एक रेफरेंसिंग और साइटेशन कैसे करनी है, उसके लिए एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें ये चीज़ें, इनकी मैं वीडियो मैं या तो फ्री रिकॉर्ड कर दूंगा या आपको वैसे मैं लेक्चर में एक तो ये कैसे करनी है, एक आपने साइटेशन और रेफरेंसिंग कैसे करनी है, इस पे भी मैं आपसे एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आपने प्रिटेंड किया कि मेरा आइडिया, अगर आप स्टिल that's all about chapter number 3. Question I'll be